Good morning, students. This is vectors lecture number 7, and today we are going to start with subtraction of two vectors, which is just 5 minutes job. Just 5 minutes job, because in the previous lecture we did one sum. Mod of a plus b is equal to mod of a minus b. तो बेटा mod of a plus b में मैंने क्या बोला था? It should be root of a square plus b square plus 2ab cos theta. Whereas mod of a minus b में क्या बोल रहा है? It is root of a square plus b square minus 2ab cos. That is the only difference between the two, right? So first we will go for subtraction of vectors, then we will go for resolution of a vector. Many to one is called composition. अब जैसे आपने दो का एक वेक्टर ढूंढा, you had two vectors a and b. You said, sir, r is vector a plus vector b. Means you combined the two vectors and you got one vector. That is called composition or combination. Many to one. It is something like when you mix 7 colors: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Have you heard about Newton's disc by any chance? Yes. Newton's disc में क्या होता है बेटा? You will have to cut a disc from a white drawing paper. Make a circle and make 7 segments in this. Make 7 segments. Okay. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Now this is pivoted on a needle. Okay, and with the help of electrical supply, this is made to rotate very fast. Right? When it is at rest, you can see 7 colors. You can see these segments very clearly. But when it starts rotating very fast, by the time your brain understands that you have seen violet, indigo overlaps that. By the time your brain understands you have seen indigo, blue overlaps. Because there is a concept called persistence of vision. I'm sure you must have heard about this. Whatever you see, the effect of that remains on your brain for 1/10 of a second. 1/10 of a second means 100 milliseconds. 100 milliseconds. 1 millisecond is 10 raised to minus 3 seconds. इसका मतलब 1/10⁻³ milliseconds is 1 second. That means 1 second is 1000 milliseconds. That means 1/10 of a second is 1000/10 milliseconds. Right? That means this is happening in the time zone of 100 milliseconds. So if something happens faster than that, right, your brain fails to understand which color did you see. अभी बेटा आपको जैसे कि ब्लेड दिख रहे हैं ना, फैन के 3 ब्लेड दिख रहे हैं. ये ब्लेड के 3 फैंस दिख रहे हैं. आप एक तो एकदम स्पीड में रोटेट करो इसको, आपको पता ही नहीं चलेगा इसके कितने ब्लेड्स हैं. साइकोलॉजिकली आपने देखा हुआ है कि हाँ इसके 3 ब्लेड्स थे जब मैंने इसको रेस्ट पे देखा था. बट अदरवाइज इफ आई गिव यू सम फैन व्हिच इज ऑलरेडी इन रोटेटिंग मोड एंड इफ आई आस्क यू हाउ मेनी ब्लेड्स आर देयर, 2, 3 or 4 or 5, you will not be able to tell me because your brain fails to understand that. If you had seen that fan at rest, then it's a different thing because you have that preset answer in your mind कि हाँ these are 3 blades, right? So this is many to one. This is many to one because your brain understands white now, right? Now when it slows down, your brain again understands all 7. So many to one is called composition or combination or resultant. One to many, in the language of light, it is called dispersion of light. For example, when white light is passing through prism, you know that it gets divided into 7 colors. Yes or no? So that violet deviates the maximum, red deviates the minimum. So this is called angle of deviation of violet, delta V, and this is called angle of deviation of red. And in between you have different colors. In between you have different colors. So this is called dispersion. So many to one is called composition, and one to many is called resolution. So today we are going to do one subtraction of two vectors, very simple. Next we are going to do resolution of a vector in 2 dimension, followed by resolution of a vector in 3 dimension. Very simple lecture. Today's lecture very simple. First, to begin with subtraction of vectors. If this is vector A, like always, if this is vector B, like always, then what is composition of 2 vectors? Complete a parallelogram, and just join this. So who is this composition? No, this is vector A plus vector B. This is vector A plus vector B. Now I do not want vector A plus vector B. I want vector A minus vector B, या तो vector B minus vector A. So if this is vector A
and if this is vector B, then what can you say about this blue one? It is vector A plus vector B. Am I right? मैं सिर्फ वेक्टर का सिंबल लिख रहा हूं, अभी तक मैंने मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है, मैग्नीट्यूड बाद में लिखूंगा. अभी ये वेक्टर बी को बेटा आप उल्टा कर दो, सिर्फ उल्टा करना है. दैट मींस यू आर ड्राइंग नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वेक्टर? माइनस बी. तो इसका पैरेललोग्राम ऐसे बनेगा कि नहीं? इसका पैरेललोग्राम ऐसे बनेगा कि नहीं? सो टेल मी द नेम ऑफ दिस वेक्टर. टेल मी द नेम ऑफ दिस वेक्टर. Is it vector A plus minus B? Is it vector A plus minus B? Yes or no? Right? And therefore we will find out size of this. अगर आपको वेक्टर B minus वेक्टर A करना है, अगर आपको वेक्टर B minus वेक्टर करना है, तो B को कुछ मत करो, A का नेगेटिव ड्रॉ करो. So when you draw A का नेगेटिव, can I say उसका रिजल्टेंट इधर बनेगा? Yes or no? Whichever vectors you are taking, you have to draw parallelogram there. Yes or no? So who is this vector now? This was A. This is minus A. So can I say this vector becomes vector B minus vector A. Check please. Everywhere I have put vector sign. Check please. Everywhere I have put vector sign. Now if this was angle between two vectors. Right, it was angle between vector A and vector B. So what is vector A and vector B का magnitude? Is it A square plus B square plus 2AB cos of theta under root? आप लोगों ने मुझे दो आंसर्स देने हैं. आप लोगों ने मुझे दो आंसर्स देने हैं. एक आपने मुझे देना है वेक्टर A माइनस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड. कम ऑन, वेक्टर A माइनस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड. कम ऑन, प्राउड ऑफ यू. रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा. परफेक्ट. एंड हाउ अबाउट वेक्टर B माइनस वेक्टर A? हाउ अबाउट वेक्टर B माइनस वेक्टर A का मैग्नीट्यूड? कम ऑन, रूट ऑफ A square plus B square minus 2AB cos of theta. क्योंकि जब आप ये लेते हो, आपने लिया A square plus minus of B का square, which is again B square. और जब आपने ये लिया तो आपने लिया B square plus minus A square. तो अल्टीमेटली वही आंसर आया ना. Square of the number is always positive. So very simple logic. Very very simple logic. अगर बेटा यहाँ पे प्लस साइन है तो यहां पे प्लस आएगा, यहां पे माइनस साइन है, या तो यहां पे माइनस साइन है, या तो बी के आगे माइनस साइन है, या तो ए के आगे माइनस साइन. दैट मींस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, या तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए. यू विल एंड अप टू द सेम आंसर. इज दैट वेरी क्लियर? दिस इज कॉल्ड सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स. दिस इज कॉल्ड सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स. So then can we say A minus B and B minus, is it commutative? Size wise, only size wise बेटा, only size wise. Good you ask me. यहाँ पे एक रिजल्ट लिखता हूँ मैं, ध्यान से सुनो बेटा. यहाँ पे मैं एक रिजल्ट लिखता हूँ. वेक्टर A माइनस वेक्टर B इज नॉट इक्वल टू वेक्टर B माइनस वेक्टर A. Magnitude does not come as it. The answer does not come. बिकॉज बेटा ये वेक्टर का डायरेक्शन या और ये वेक्टर का डायरेक्शन साइज वाइज वो सेम हो सकता है, राइट? लेकिन you know that subtraction is not permitted. So subtract, would you ask me this? Subtraction of two vectors is not commutative. Subtraction of two vectors is not commutative. Subtraction of two vectors is not commutative. समझा? If we write a mod, then it will be commutative. Mod yes. Mod yes. Are you getting this? If you write mod, then yes. Because अगर बेटा ये एंगल सपोज 120 डिग्री है, तो सामने ऑपोजिट एंगल 120 डिग्री होता है. मान लो ये एंगल 60 है, राइट? तो A और माइनस B के बीच का एंगल 120 है, तो सामने B माइनस A के बीच का भी एंगल 120 है. यस, समझा? सुपर श्योर. आपका बुक ओपन करो, पहले आप थियरी नोट्स पढ़ो. पहले आप थियरी नोट्स पढ़ो. थियरी नोट्स में से भी बेटा अपना काफी कुछ हुआ है, काफी कुछ हुआ. अब तक जितना भी किया वेक्टर्स में समझा. इसके बाद वाला जो आर्टिकल आएगा ना, डॉट प्रोडक्ट, ट्रस्ट मी, सुपर डुपर इंटरेस्टिंग.
खाली जो टफ पार्ट है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट बिकॉज उसमें डायरेक्शन आता है, यू हैव टू बी केयरफुल. I want all of you to be on theory notes. पेज नंबर 16 पे आ जाओ. पेज नंबर 16 पे आ जाओ. एकदम लास्ट जो हम लोगों ने किया था दैट वाज पॉलीगोनल लॉ. क्वेश्चन 14 किया था. आर यू ऑन पेज नंबर 16 थियरी नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, नॉट द हैंड रिटन वंस. उसमें क्वेश्चन 15 देखो, क्वेश्चन 15 उसमें आप ध्यान से देखो, दो वेक्टर्स दिए हैं C एंड D. उसमें क्या किया उन्होंने, C को एज इट इज रखा है और D का उल्टा ड्रॉ किया है. तो जो बाकी बचा that vector is can I say resultant वेक्टर R, और वो वेक्टर आप कैसे लिखोगे, डायग्राम देख के बताओ. वो वेक्टर R आप कैसे लिखोगे. पेज नंबर 16 पे जो एकमात्र डायग्राम है उसमें राइट साइड पे एक डायग्राम है, उसमें आप वेक्टर R कैसे लिखोगे. विल इट बी वेक्टर C प्लस वेक्टर माइनस D. वेरी गुड. तो आप लोगों को डायग्राम में बेटा वेक्टर R के बाजू में लिखो इट इज वेक्टर C प्लस माइनस D. आपने अप्लाई तो ट्रायंगल लॉ किया ना. सो इज इट वेक्टर ऑफ C माइनस D. दिस इज कॉल्ड सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स. बराबर. ये और भी ज्यादा अच्छे से इधर दिया. क्वेश्चन नंबर 16 टिक करो बेटा. क्वेश्चन नंबर 16 टिक करो. क्वेश्चन नंबर 17 अपना कितनी बार हो गया. हो. व्हाट इज यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर, किया है कि नहीं स्टूडेंट्स. इधर देखो बेटा, व्हाट इज यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर. इज इट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड या तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. इसके ऊपर हम लोगों ने कितने सारे सम्स भी किए है ना. प्रैक्टिस पेपर 2 के आपके लास्ट 5-6 सम्स सिर्फ इसी के ऊपर थे. यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर इज वेक्टर अपॉन इट्स साइड्स. And everybody here, I, J, K are the orthogonal unit vectors. मतलब हम लोगों ने जब एकदम स्टार्टिंग में डेफिनेशंस किए थे क्वेश्चन नंबर 8 में, उसमें एक डेफिनेशन अलग थे सारे यूनिट वेक्टर, एक डेफिनेशन अलग से था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स. क्वेश्चन 17 इज कंबाइंड ऑफ ऑल. तो क्वेश्चन नंबर 17 अपना हो चुका है. एक बार आराम से पढ़ लो बेटा. आपका पेज नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका है. आपका पेज नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका है. हो गया, हुआ है कि नहीं, कितनी बार हुआ. ये तो प्रॉब्लम्स भी कर लिया हम लोगों ने. ओके, नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल आई विल डू 2 आर्टिकल्स टुगेदर. हाउ टू रिजॉल्व अ वेक्टर इन 2 डायमेंशन, हाउ टू रिजॉल्व अ वेक्टर इन 3 डायमेंशन, एंड फ्रॉम दैट वी विल डू DCS. DCS का मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइंस. एज आई टोल्ड यू, सुपर सिंपल आर्टिकल. बुक्स बंद रखो एकदम, जब तक मैं बोलूं नहीं बुक्स बंद रखो. बुक्स बंद रखो. What is the meaning of composition of vectors? Can you say many to one, 2 to 1 triangle law, 2 to 1 parallelogram law also, 3 to 1 associative law, 4 to 1, 5 to 1, 6 to 1, n to 1 polygonal law. So what is the meaning of composition of vectors? Many to 1. When you do not want to draw many vectors, and if you can give the same effect with the help of one vector, then that is called composition. मैंने आपको 10 रुपए के 10 नोट्स दिए, 20 रुपए के 5 नोट्स दिए, राइट, 50 रुपए के 4 नोट्स दिए और 100 रुपए का एक नोट दिया. Am I giving you 100 rupees, 200 rupees, 100 rupees? That means I am giving you 20 currency notes. In place of that, if I give you one note of 500 rupees, is the effect same? So rather than giving you 20 notes, you may ask me, sir, बहुत चिल्लर हो रहा है सर, आपके पास 500 रुपए का नोट है तो वो दोनों, तो I will straight away give you that. So that is called combined effect. Easy. Many to one means composition or combination. Resolution of a vector means 1 to many, right? 1 to many.
इसमें usually there are two types. 1 to 2, 1 to 2, and 1 to 3, 1 to 3. अगर बेटा 1 to 2 जाते हो मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन, और जब आप 1 to 3 जाते हो दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट 3 dimensional resolution. As I told you, it is very, very, very simple. Very, very, very simple. I will give you a vector in 2 dimension. I will give you a vector in 2 dimension. Suppose बेटा ये x axis है, ये y axis है, बराबर. मैंने आपको एक ही वेक्टर दिया है, and that vector is this, and that vector is this. Mind you, I am giving you a single vector. This vector is given to you. Let me give some name to this. Say R vector. ये मैंने आपको दिया. आपको मैंने एक ही वेक्टर दिया, आपने इसके 2 बनाने हैं. तो what you should simply do, draw perpendicular on x-axis, draw perpendicular on y-axis. Right? Let us call this as Rx vector. इसको बोलते हैं x component. Let us call this as ry vector. मतलब ये वेक्टर हो गया ये वाला ry, और ये वाला हो गया rx, और इसको मान लो मैंने थीटा बोला, राइट? तो इसको मैं कितने अलग अलग स्टाइल में लिख सकता हूं. स्टाइल नंबर 1, थैंक यू. स्टाइल नंबर 1, vector r is combination of vector x and vector y. Do you agree with me? मेरे पास एक ही वेक्टर था, एग्जामिनर ने मुझे सिर्फ ये r दिया था, मैंने क्या किया, 2 ढूंढा कि नहीं. One is x component, other is y component. इसी को लिखने का दूसरा स्टाइल है बेटा. Can I write this as rx times I plus ry times j? एकदम ध्यान से सुनो. इधर rx के ऊपर वेक्टर साइन था, इधर ry के ऊपर वेक्टर साइन था, राइट? नाउ कैन आई से एनी वेक्टर इज साइज इनटू यूनिट वेक्टर. मीनिंग सेम है ना. ये rx वेक्टर का और ये rx टाइम I का मीनिंग सेम है, लेकिन जब आप ये लिखते हो ना, rx के ऊपर वेक्टर साइन नहीं आना चाहिए. नो, बिकॉज इट इज द साइज. जब मैं वेक्टर लिखता हूं 5i प्लस 4j प्लस 3k, तो ये ऐसे लिखता हूं ना, ऐसे देखा कभी? 5i प्लस 4j प्लस 3k, ये तो गलत है ना. मतलब इसके ऊपर वेक्टर साइन नहीं आना चाहिए. किसके ऊपर? 5 के ऊपर. 4 के ऊपर नहीं आना चाहिए और 3 के ऊपर नहीं आना चाहिए, लेकिन मुझे समझ में आना चाहिए कि ये वेक्टर का साइज 5 है. तो who will do that? I. Who will do that? J. Who will do that? K. What is the job of unit vector? The job of unit vector is, without changing the size, it talks about the direction. So when you see Rx times I, what does this mean? Rx is the size along x, Ry is the size along y. समझा? अब तीसरा वाला ध्यान से देखो बेटा. ये Rx कौन है? थीटा का सामने वाला कि थीटा का बाजू वाला? वेरी गुड. तो कैन आई राइट दिस एज r cos थीटा टाइम्स I. बोलो. वापिस देखो बेटा, Rx कौन है? थीटा का बाजू वाला साइड है कि थीटा का सामने वाला साइड है? मतलब अगर ये वेक्टर के मैं रिजोल्यूशन लूं, कंपोनेंट्स लूं, तो ये बाजू वाला कंपोनेंट कौन हुआ? x कंपोनेंट, राइट? बाजू वाला कंपोनेंट x कंपोनेंट हुआ. और बाजू वाला का मतलब क्या? ट्रिग्नोमेट्री वाइज, साइन की कॉस. वेरी गुड. समझा? इसके लिए क्या लिखोगे बेटा, बताओ? r sin थीटा टाइम्स j. मतलब वेक्टर लिखने का 3 स्टाइल था. 1, 2 and 3. जब आप अपना आंसर थीटा के टर्म्स में लिखते हो, थीटा उसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स. क्या बोलते हैं? जब आप अपना आंसर थीटा के टर्म्स में लिखते हो, इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स. एंड नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये कहां पे यूज होता है.
It is very, very beautifully used in circular motion. It is very, very beautifully used in circular motion. Example, if this is circle, and if I show this as x-axis and this as y-axis, बराबर, तो बेटा ये x हुआ, ये y हुआ, ये ओरिजिन हुआ, आपकी मर्जी, आपको जिधर पॉइंट सिलेक्ट करना है करो सर्कमफरेंस पे, योर चॉइस. Join this. Tell me who is this vector. Let me call point as P. Whose coordinates are x, y. तो बेटा ये वेक्टर क्या हुआ? Is it radius vector? सोच के बताना, एकदम सोच के बताना. Radius vector is a constant vector की variable vector? जब मैं बोलूँ ना सोच के बताना, मतलब वो इतना इजी क्वेश्चन नहीं था, it was a trick question. Variable vector, anybody, why? The direction every moment keeps changing. बेटा मैंने इधर एरो बनाया ना, मतलब ये मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ रेडियस की बात नहीं कर रहा हूँ. R vector is a radius vector. Most important is it is not a constant vector. Therefore, it is variable vector. A constant vector is the one whose magnitude and direction both remain constant. Whereas a variable vector is the one whose either magnitude is changing or direction is changing or both are changing. आप कार ड्राइव कर रहे हो, राइट? आप एकदम स्ट्रेट जा रहे हो, लेकिन पहले आपकी स्पीड थी 0 because you started the car. Then it was 10, then it was 25, then it was 50, then it was 80. Even though you are going on the same line, can we see you are going with variable velocity? Because your speed is changing. एक लेवल पे आके आपकी स्पीड एक ही है, 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, 80 और आपने 80 किलोमीटर पर आवर मेंटेन करके टर्न लिया. Now you are not constant velocity. Reason direction changes. जैसे अभी आपने सिग्नल देखा, रेड सिग्नल देखा, आपकी गाड़ी स्ट्रेट जा रही थी, फिर भी आपने ब्रेक अप्लाई करना शुरू किया. Can we say again you are going with variable velocity? आप constant velocity से कब जाओगे? जब आप हाईवे पे जा रहे हो, आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं है, कोई भी नहीं है, and your car is on cruise control mode. मतलब आपने एक स्पीड फिक्स कर दिया 80. अभी cruise control mode का मतलब क्या होता है कि if there is a car ahead of you in the range of 5 meter, if there is a car side by to you in the range of about 1 meter and 1 meter, then the sensors of your car sense that कि बाजू में कोई तो है, तो फिर आपका गाड़ी का स्पीड कम हो जाता है and accordingly you can control the car. Means then it is a manual mode. When the pilot is taking the flight up to a particular height after 35,000 feet, उसके बाद में पायलट उसको ऑटो पायलट मोड पे डाल सकते हैं. अभी बॉम्बे टू न्यूयॉर्क का एक लॉन्ग फ्लाइट है 18 आवर्स का, तो पायलट ऐसे ही थोड़ी बैठा होगा 18 आवर्स के लिए, कोई आ रहा है कि नहीं, कोई जा रहा है कि नहीं, कोई रोड क्रॉस कर रहा है कि नहीं. नो, 35,000 फीट पे कोई नहीं आने वाला है, 40,000 फीट पे कोई नहीं आने वाला है. सी द प्रॉब्लम इज ऑफ व्हाट इफ अ माउंटेन कम्स, व्हाट इफ यू कांट सी द थ्रू द क्लाउड्स एंड देयर इज अ माउंटेन क्लिफ एंड योर प्लेन कोलाइड्स. 35,000 फीट पे होने वाला ही नहीं है, बिकॉज द हाईएस्ट माउंटेन इज 29,048 माउंट एवरेस्ट. That is the reason the passenger flights have to go at a particular height and then they can go with constant speed. Means now after that your speed is about approximately 900 kilometers per hour constant. मतलब flight without any turbulence straight जा रहा है, because the sky is very very clear, no clouds, no turbulence, no wind factor, nothing. तो cruise control mode पे you will be surprised, पायलट बीच में पावर नैप भी मार सकता है, राइट? वो पर्टिकुलर स्पीड में पायलट आराम से कॉफी पी रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है. आपको कॉकपिट में जाना अलाउड ही नहीं, मालूम है ना? यू आर नॉट अलाउड टू एंटर द कॉकपिट एरिया, राइट? बिकॉज हाईली कॉन्फिडेंशियल मशीन्स आर देयर, वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल, राइट? सो इफ यू टेक द मोबाइल पिक्चर ऑफ दैट, लेट मी हैव अ सेल्फी विद द पायलट, आई वाज देयर इन द कॉकपिट, नॉट अलाउड, बिकॉज देयर आर वेरी कॉन्फिडेंशियल थिंग्स ऑन द स्क्रीन, राइट? अच्छा, अगर आप चले गए और पता चला पायलट सो रहा है या तो पायलट कॉफी पी रहा है और न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और को पायलट से बातें कर रहे, तो आपको टेंशन तो यार प्लेन कौन उड़ा रहा है. इट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज ऑन ऑटो पायलट मोड. टेस्ला कार का फंडा क्या है बेटा? हाईली ऑटोमेटेड सिस्टम, फैंटास्टिक कंप्यूटर सिस्टम, उसके सब जगह पे सेंसर्स लगे हुए हैं, तो आप आराम से ड्राइविंग सीट पे न्यूज़पेपर पढ़ो,
टेस्ला अपने आप देख लेगा आप कितना आगे डिस्टेंस में कार है, अपने आप को कार का स्पीड कम ज्यादा करेगा। आपको पता चला इधर पार्किंग स्पेस है तो उसके पावरफुल कैमरास उसको सेंस करेंगे इतना का पार्किंग स्पेस है, गाड़ी रिवर्स लेके थोड़ा आगे लेके ये लेके गाड़ी अपने आप पार्क हो जाएगी। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। इट इज सच ऑटोमेटेड कार, हाईली ऑटोमेटेड। मींस दे आर ट्राइंग टू अप्लाई द फंडामेंटल्स ऑफ प्ले इन द कार, राइट? दैट मींस यू डोंट नीड अ ड्राइव, राइट? लेकिन अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप भी गाड़ी चलाओगे तो आप सपोज ड्राइव कर रहे हो और आपके सामने से एक गाड़ी आ रहा है, ड्राइविंग सीट पे कोई नहीं बैठा है, तो उसको देख के अपने को टेंशन आएगा गाड़ी कौन चला रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो रेडियस वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर की वेरिएबल वेक्टर, बिकॉज डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग, डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग। तो अभी जो बेटा मैंने डायग्राम बनाया ना, इसमें एग्जैक्टली ये यूज होता है। क्या करो, इधर से एक परपेंडिकुलर बनाओ, इधर से एक परपेंडिकुलर बनाओ, mark this point, let us call this point as m, let us call this point as n, let us call this vector as om vector, let us call this vector as on vector। तो ये आपने r बोला है ना, इसको मैं कैपिटल r कर देता हूं, इसको मैं कैपिटल r कर देता हूं, रेडियस वेक्टर। तो बेटा ये हुआ rx, ये हुआ ry, और आपका वेक्टर हुआ वेक्टर r is rx times I and ry times j. And now suppose it is making angle theta with x axis. Common sense apply करो। आप rx को और क्या लिख सकते हो? Is it r cos theta? Very good। और ry को क्या लिख सकते हो? r sin theta। इसका मतलब आपका सेकंड स्टाइल ऑफ राइटिंग हुआ r cos theta times I and r sin theta times j। जब आप अपना आंसर x और y में लिखते हो उसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। और जब आप अपना आंसर थीटा के टर्म्स में लिखते हो इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब ये पोलर कोऑर्डिनेट्स का फायदा क्या है मालूम है? ये पार्टिकल किधर भी जाए ये पार्ट फिक्स रहता है। सोचो आर पार्ट फिक्स रहता है, सिर्फ थीटा चेंज होता है। सपोज थीटा अभी 30 है, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, उसकी वजह से ये कॉस और साइन चेंज होता है। cos of 30 cannot be same as cos of 45, no? Cos of 45 cannot be same as cos of 60. That is the reason it is a variable vector. That is the reason it is a variable vector. अपना प्रिंटेड नोट्स में क्वेश्चन नंबर 8 में पोजीशन वेक्टर में एक पैराग्राफ बाकी था, बिकॉज वी हैड टू वेट फॉर दिस। आपका प्रिंटेड नोट्स में पेज नंबर तो खैर मुझे याद नहीं है, पोजीशन वेक्टर के डेफिनेशन क्या है? पेज 11, पेज 11 उसमें बेटा 8th डेफिनेशन पोजीशन वेक्टर है, उसमें एक पैराग्राफ है, देखो रेडियस वेक्टर का। मेन डेफिनेशन डार्क लेटर्स में लिखा हुआ है, उसके बाद में एक पैराग्राफ है, पढ़ो उसको, दैट इज रिलेटेड टू दिस। माइंड यू मेरा नेक्स्ट चैप्टर सर्कुलर मोशन होने वाला है, मतलब ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा ना, जब भी क्रॉस पड़ा और सब टॉप क्वेश्चंस, मेरा सबसे पहला पेज ही ये होगा, सर्कुलर मोशन। अनदर वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल चैप्टर। समझा? ओके, अब आप पेज 18 पे आ जाओ, 17 पेज 17 क्वेश्चन 18 देखो, पेज 17 क्वेश्चन 18 देखो, उसका फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ो सिर्फ। एक्सप्लेन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप अ गिवन वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। अभी अभी जो मैंने रिजोल्यूशन किया वो किस में किया? 2D में कि 3D में? बराबर बेटा, ओके। थीटा का बाजू वाला कंपोनेंट कौन? कॉस। थीटा का बाजू वाला कंपोनेंट कौन? और थीटा का सामने वाला कंपोनेंट साइन। तो बेटा ये कॉस कंपोनेंट हुआ, ये साइन कंपोनेंट हुआ। जब आप ऐसे लिखते हो तो इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। पर जब आप ऐसे लिखते हो तो इसको क्या बोलते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स।
सोच के बताओ ये वेक्टर का साइज क्या है, सोच के बताओ, इजी है। साइज ऑफ अ वेक्टर या तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कंपोनेंट्स। तो बेटा इसका साइज कैसे लिखोगे आप? मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज इट रूट ऑफ rx square plus ry square? Is it root of rx square plus ry square? अब एक थोड़ा हट के लिखता हूं, ध्यान से सुनो। r वेक्टर ये भी तो था, r वेक्टर ये भी तो था, r cos थीटा टाइम्स i वेक्टर प्लस r sin थीटा टाइम्स j वेक्टर। अगर बेटा ये फॉर्मूला के हिसाब से इसका मैं साइज लिखूं तो क्या लिखूंगा? कम ऑन, मेक मी फील प्राउड। Will it be root of r square cos square theta plus r square sin square theta? Can I say this is root of r square common cos square theta plus sin square theta? Yes or no? What is cos square theta plus sin square theta? So is it root of r square vanza? So is it root of r square? Is it plus minus r? Can I say only r? Why? अभी देखो मैंने क्या लिखा। ये कौन है? रेडियस वेक्टर। इसको आप पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हो कि बिकॉज इट गिव्स यू आइडिया अबाउट पोजीशन ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O। O के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो बेटा ये वेक्टर क्या हुआ? x माइनस 0 टाइम्स i प्लस y माइनस 0 टाइम्स j, बराबर ना? करेक्ट। तो इसका साइज क्या हुआ? साइज, सिर्फ साइज, रेडियस ऑफ द सर्कल। सोच के बताओ ये कांस्टेंट वेक्टर है कि नहीं है? वेरी गुड। ये कांस्टेंट है कि नहीं? यस। मतलब साइज ऑफ दिस वेक्टर इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट दिस वेक्टर इटसेल्फ इज नेवर कांस्टेंट। ध्यान से सुनो बेटा, रेडियस वेक्टर इज नेवर अ कांस्टेंट वेक्टर बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर कीप्स चेंजिंग, बट द साइज ऑफ दिस वेक्टर इज ऑलवेज कांस्टेंट बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल शुड ऑलवेज बी कांस्टेंट। समझा अच्छे से? आई रिपीट, रेडियस वेक्टर इज नेवर अ कांस्टेंट वेक्टर बिकॉज द डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग, but the size of this vector is always constant because magnitude never changes. समझा? Please let me know. 18th question का first definition समझा आपको? Splitting of a vector. अब ये मैंने किस में किया था? 2D में कि 3D में? 2D। हाँ, अभी बुक एकदम बंद करो क्योंकि आपको थोड़ा thought process देके आंसर देना। आपको थोड़ा thought process देके आंसर देना। आपको थोड़ा thought process देके आंसर देना। बेटा 2D में कितने कंपोनेंट्स हैं? वेरी गुड। कौन से? एक्स एंड वाई। आगे बोलोगे तो साइन एंड कॉस, आगे बोलोगे तो साइन एंड कॉस। तो 3D में कितने कंपोनेंट्स आने चाहिए? 6। उसका रीजन बोलता हूं आपको। एक वेक्टर के लिए एक प्लेन में 2 कंपोनेंट्स है। अब मेरे पास एक प्लेन नहीं रहने वाला है, एक और एक और। तो इधर 2 आए ना, साइन एंड कॉस, तो बेटा इधर भी 2 आएंगे, साइन एंड कॉस, और इधर भी 2 आएंगे, साइन एंड कॉस। एंड इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये आपका वेक्टर है 3 डायमेंशन में, बिकॉज नाउ आई विल हैव टू शो यू अ बॉक्स। तो सपोज दिस इज अ क्यूब और इट इज अ क्यूबॉइड, मतलब ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। मैंने स्क्वायर को कन्वर्ट करके क्यूब किया, और अगर रेक्टेंगल था तो उसको कन्वर्ट करके रेक्टेंगुलर बॉक्स किया। अब एकदम ध्यान से सुनो, ये कौन है? ये ओरिजिन। ये कौन है बेटा? एक्स एक्सिस, आपकी मर्जी। ये कौन है? वाई एक्सिस। और ये कौन है? राइट। तो इसको आपने एक्स बोला, इसको आपने वाई बोला, इसको आपने जेड बोला। मैं आपको एक वेक्टर देता हूं रैंडमली, सो हु इज दिस वेक्टर? वेक्टर आर, सेम, राइट? दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट वाज O। कैसे लिखोगे? 0, 0, 0। तो ये पॉइंट आप कैसे लिखोगे? x, y, z, राइट? अभी 3 एंगल्स बनाने का। एंगल मेड बाय द वेक्टर विथ x एक्सिस इज कॉल्ड अल्फा। एंगल मेड बाय द वेक्टर
with y axis is called beta. An angle made by the vector with z axis is called gamma. Visualize करो बेटा, visualize करो. Will you please come on? ये वेक्टर पकड़ो. ये वेक्टर बेटा प्लेन में है, राइट? तो ये वेक्टर भी प्लेन में होता, पकड़ो, और ये वेक्टर भी प्लेन में होता. वन प्लेन, अदर प्लेन, अदर प्लेन. लेकिन ये वेक्टर किस में है? स्पेस. होल्ड दिस नाउ. सपोज बेटा ये एक्स एक्सिस है. ट्रायंगल मेड बाय दिस वेक्टर विद एक्स एक्सिस इज अल्फा. ये वाई एक्सिस है. ये एंगल मेड बाय द सेम वेक्टर विद y एक्सिस इज बीटा, और ये z एक्सिस है, तो गामा. कुड यू विजुअलाइज? बस यही पार्ट मेन था. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू. राइट, यही पार्ट मेन था. इज दिस द वेक्टर? एंगल मेड बाय द वेक्टर विद x एक्सिस इज अल्फा, विद y एक्सिस इज बीटा, एंड विद z एक्सिस इज गामा. एक ही एंगल था तो दो कंपोनेंट्स मिले थे. एक ही एंगल था तो दो कंपोनेंट्स मिले थे, r cos थीटा एंड r sin थीटा. अभी कितने कंपोनेंट्स मिलेंगे? 6 कंपोनेंट्स मिलेंगे. यस और नो? कैन यू प्लीज टेल मी कौन से 6? आराम से. rx, ry, rz. ये जो 6 कंपोनेंट्स मिलेंगे, आर दे गोइंग टू बी रिस्पेक्टिवली r sin अल्फा, r cos अल्फा, r sin बीटा, r cos बीटा, r sin गामा, r cos gamma. What is alpha? Alpha is the angle made by the vector with x-axis. What is beta? Angle made by the vector with y-axis. What is gamma? Angle made by the vector with z-axis. बराबर. अभी इसका टाइटल है डायरेक्शन कोसाइंस. ध्यान से सुनो बेटा, मैं टाइटल क्या लिख रहा हूं? डायरेक्शन कोसाइंस. डायरेक्शन का मतलब ओरिएंटेशन, डायरेक्शन का मतलब एंगल, डायरेक्शन का मतलब ओरिएंटेशन, एंड डायरेक्शन का मतलब एंगल. तो डायरेक्शन का मतलब समझा? कोसाइंस मतलब आई वांट यू टू फोकस ओनली ऑन द कॉस कंपोनेंट. तो इसका शॉर्ट फॉर्म है बेटा DCS, और ये शॉर्ट फॉर्म अलाउड है एग्जाम में. ये शॉर्ट फॉर्म अलाउड है. D का मतलब डायरेक्शन, C का मतलब कोसाइन, S का मतलब प्लूरल ऑफ दैट. सो इट इज प्रोनाउंस्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस. मतलब आपको सिर्फ कॉस कंपोनेंट्स लिखना है, राइट? सो यहां पे आप लिखोगे Rx is equal to R cos alpha, because alpha was the angle made by the vector with x axis. I am super sure. You can give me the next one. Come on. R cos beta. बराबर. आपको बेटा साइन बोलना ही नहीं है, हालांकि 6 के 6 आएंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ कॉस यूज करेंगे, और ये कॉस यूज होता है डॉट प्रोडक्ट में. साइन भी आएगा, दैट साइन विल बी यूज्ड इन क्रॉस प्रोडक्ट, बट टुडे वी आर गोइंग टू टेक 3 ऑफ देम आउट ऑफ 6. आई रिपीट, एक एंगल था तो कितने कंपोनेंट्स थे? 2. When the angle was theta, my components were r cos theta and r sin theta. Now I have got 3 angles. One by one बेटा सोच के बोलो. What is beta? Angle made by the vector with y-axis. What is gamma? Angle made by the vector with z-axis. What is alpha? Angle made by the vector with x-axis. So 6 components: r cos alpha, r cos beta, r cos gamma, r sin alpha, r sin beta, r sin gamma. What is our title? डायरेक्शन कोसाइंस. मतलब हम लोग आज सिर्फ कॉस लेने वाले हैं. सो हु इज Rx? r cos alpha. x है इसलिए अल्फा. डायरेक्शन कोसाइंस इसलिए हम लोगों को साइन के बारे में सोचना ही नहीं है, सिर्फ कोसाइंस. व्हाट इज ry? r cos beta. एंड व्हाट इज rz? समझा बेटा? तो व्हाट इज cos alpha? What is cos alpha? Is it not Rx upon R? What is cos beta? Is it not Ry upon R? And what is cos gamma? So mind you, ये टाइटल हुआ बेटा, ये टाइटल भी हुआ
और ये आपका रिजोल्यूशन इन 3 डायमेंशन भी हुआ. 2 चीजें हुई. हाउ मेनी एंगल्स डिड आई टेक दिस टाइम? 1 और 3? 3. Can I say with 3 axes each? X axis and Y axis and Z axis. So I am resolving this vector in 2D ki 3D. 3D. If it was 2D, how many components? 2. Sine and cos. If it is 3D, how many components? 6. 3 2s are 6. Sine alpha, cos alpha, sine beta, cos beta, sine gamma, cos gamma. Today I am interested in which components? Cos. So the title. Direction cosine. So the title. Direction cosine. सोच के बोलो बेटा, cos alpha, cos beta और cos gamma के ये जो ratios है, apply common sense. Don't you think they will be compulsorily between -1 and +1? याद करो बेटा, आपका cos alpha का आंसर 1 और -1 के बाहर हो ही नहीं सकता है. आपका cos beta का आंसर भी 1 और -1 के बीच में ही होगा, और आपका cos gamma का आंसर भी 1 और -1 के बीच में ही होगा. सोचो. Now one brilliant thing. ये अपने आप में सब MCQs है. ये मैं जो छोटा छोटा 1 लाइन लिख रहा हूँ ना, ये सबके सब MCQs है, और ये सारा मैंने हैंड रिटन नोट्स में डाला हुआ है. Everything is there. You just need to focus when I'm teaching something. एकदम ध्यान से सुनो बेटा. What will be cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma? सोचो. What will be cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma? Will it be इसका square plus इसका square plus इसका square? So left hand side का square का sum should be right hand side का square का sum. So is it rx square upon r square plus ry square upon r square plus rz square upon r square? समझा बेटा? समझा की बात है? What is cos alpha? Rx upon r. So what is cos square alpha? Rx square upon r square. Likewise cos square beta, and like that cos square gamma. सोचो, लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक है, राइट हैंड साइड ऐसे हुआ कि नहीं? rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. बट व्हाट इज न्यूमरेटर? r स्क्वायर. चेक करो बेटा, अगर बेटा वेक्टर है rxi प्लस ryj प्लस rzk, ये वेक्टर हुआ. आप मुझे इसका मैग्नीट्यूड बताओ. कैन आई से मैग्नीट्यूड ऑफ r इज अंडर रूट rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर. डू यू एग्री विथ मी? राइट. तो बेटा ये मैग्नीट्यूड को मैं सिर्फ r लिख सकता था, है ना? या तो मैं मॉड ऑफ r वेक्टर लिखूं या तो सिर्फ r लिखूं, एक ही बात है. इज इट रूट ऑफ rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर? स्क्वायर करो इसको. सो r स्क्वायर इज इक्वल टू rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर. प्लीज लेट मी नो, ये पार्ट समझा आपको? तो मैं क्या कर रहा हूं, ये मुझे जो न्यूमरेटर में rx स्क्वायर प्लस i1 स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर दिख रहा है, ये उसको बेटा मैं r स्क्वायर रखूंगा. सो व्हाट इज दिस? इज इट r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर? इज इट 1? एक MCQ आया. cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज ऑलवेज 1. मेरे क्वेश्चंस ध्यान से सुनना, सोच के आंसर देना. Who are alpha, beta and gamma? Who are alpha, beta and gamma? They are angles made by the vector with x-axis, y-axis and z-axis respectively. I repeat, मैंने आपको सिर्फ अल्फा बीटा गामा पूछा है, cos अल्फा cos बीटा cos गामा नहीं पूछा है. I repeat, what do you mean by alpha, beta and gamma? Axis, y-axis, z-axis respectively. So we are talking about 2D की 3D? 3D. Very good. Who are cos alpha, cos beta and cos gamma? डायरेक्शन कोसाइंस. अगर मैंने सिर्फ अल्फा बीटा और गामा पूछा तो एंगल्स. मैंने कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा पूछा तो कॉस ऑफ दोस एंगल्स. एंगल का मतलब डायरेक्शन, कॉस का मतलब कॉस, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस.
तो जब आप सिर्फ अल्फा बीटा गामा बोलते हो, जब आप सिर्फ अल्फा बीटा गामा बोलते हो तो क्या हुआ? वेरी गुड. और जब आप कॉस अल्फा बीटा कॉस बीटा कॉस गामा बोलते हो, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा? वेरी नाइस. अब इसका बाय प्रोडक्ट, इसका बाय प्रोडक्ट ध्यान से सुनो बेटा. कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, क्या प्रूव किया मैंने? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, क्या प्रूव किया? वेरी गुड. कैन आई राइट कॉस स्क्वायर अल्फा एज 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा? सोच के बताओ. ये सबको मालूम है. साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, सबको मालूम है. एनीबॉडी आईजीसीएसई स्टूडेंट? ये सबको मालूम है, राइट? सो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1. कैन आई राइट cos square alpha is 1 minus sin square alpha? चलो, give me the next bracket and give me the next bracket. Next will be 1 minus sin square beta. Next will be 1 minus sin square gamma. अभी ध्यान से सुनो मैं कैसे लिख रहा हूँ. 1 plus 1 is 3. माइनस साइन कॉमन लिया मैंने, अंदर आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. बराबर 1 ये बाजू पे लेके जाओ और वो ब्रैकेट पूरा वो बाजू पे लेके जाओ एंड यू गेट द नेक्स्ट ब्यूटीफुल रिजल्ट. कम ऑन, क्या है रिजल्ट? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2. cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is 1. sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is 2. आ गया 6 का 6. sin alpha sin beta sin gamma cos alpha cos beta cos gamma. समझा बेटा? ये क्वेश्चन अपने आप में ऐसे ही पूछते हैं लोग. आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन. sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is 1. cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is 1. tan square alpha plus tan square beta plus tan square gamma is 1. साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज 1 बोला था ना मैंने, तो उसको लोग 2 बोलेंगे. आइडेंटिफाई द करेक्ट वन. तो या तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज 1 इज करेक्ट, और या तो फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 इज करेक्ट. तो बेटा मेरे बोर्ड वर्क में कम से कम 10 क्वेश्चंस हैं. मेरे बोर्ड वर्क में ये एक क्वेश्चन हुआ, व्हाट इज एंगल मेड बाय द वेक्टर विद एक्स एक्सिस. खाली एक्स एक्सिस पूछा मतलब आपको खाली अल्फा ढूंढना. What is the angle made by the vector with y axis? What is the angle made by the vector with z axis? ये 3 क्वेश्चंस हो गए, राइट? बाद में ये चौथा खुद इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, राइट? फिर ये 5वां क्वेश्चन हुआ, फिर ये 6ठा क्वेश्चन हुआ, फिर ये तो हम लोग बहुत बार देख चुके हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ. अभी इसके ऊपर मैं एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूं. इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 99.9% ऑलमोस्ट आफ्टर एवरी 2 years एग्जामिनर रिपीट्स दिस क्वेश्चन. ध्यान से सुनो. आई विल कॉल दिस एज स्टार रेज टू 10 MCQ. गिवन vector is I plus j plus root 2k. ये वेक्टर बेटा, ये मैंने आपको ये वेक्टर दिया. इसमें मैं आपको 6 क्वेश्चंस पूछता हूं. 6. फाइंड अल्फा बीटा गामा एंड डायरेक्शन कोसाइंस. तो बेटा डायरेक्शन कोसाइंस में भी तो 3 आएंगे ना, cos अल्फा cos बीटा cos गामा. मतलब अब मैंने आपको पूछा अल्फा बीटा गामा cos अल्फा cos बीटा cos गामा. शुरू करो. ओके. मुझे किसकी जरूरत है? पहले तो साइन की cos. पॉइंट नंबर 1. कीप दिस एट द बैक ऑफ योर माइंड. टेल मी कैन आई रीराइट दिस एज वेक्टर r is rx times I plus ry times j plus rz times k. Do you agree with me? Let us call this as equation 1. ये मुझे एग्जामिनर ने दिया था. Let us call this as equation 2. ये बेटा मुझे मालूम है. So 1 by 1 tell me what is value of rx? 1. What is value of ry? 1 again. And what is value of rz?
√2 समझा? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आपके पास इसके न्यूमरेटर्स आ गए, आपके पास इसके न्यूमरेटर्स आ गए, RX आ गया, RY आ गया, RZ आ गया। अभी आपको सिर्फ एक बदलना चाहिए, because that is a common denominator. Tell me what will be R? What will be R? Is it square root of RX square plus RY square plus RZ square? So is it square root of 1 square plus 1 square plus root 2 का square? So is it root of 1 plus 1 plus 2? Is it root of 4? Is it 2? समझा? I hope I am really slow. Let me call this as equation 3. अभी बेटा आपका 6 का 6 आंसर आ गया, आपका 6 का 6 आंसर आ गया। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। Tell me, what is cos alpha? What is cos alpha? Is it Rx upon R? So is it 1 upon 2? है ना, 1 upon 2. Am I right? Because यहाँ से Rx, Ry, Rz क्या मिला था मुझे? चेक प्लीज। मुझे Rx क्या मिला था? Ry क्या मिला था? एंड Rz क्या मिला था? बराबर, मतलब वो भी तो तीनों मुझे मालूम थे ना। So, what is cos alpha? Rx upon R, 1 upon 2. What is cos beta? Ry upon R. Is it also 1 by 2? And what is Rz upon R? Is it Rz upon R, which is root 2 upon 2, which is 1 upon root 2? ये बेटा क्या ढूंढा मैंने? डायरेक्शन कोसाइंस। जो पूछा है उन्होंने, ये मैंने क्या ढूंढा? डायरेक्शन कोसाइंस। बराबर? Apply common sense. If cos alpha is half, what is alpha? Cos inverse of half. Basically the alarm time. Sorry. Okay. What is cos alpha? Half. So what is alpha? Cos inverse of half. Is it 60 degree? बराबर? इसको बोलते हैं बेटा पाई बाई 3 रेडियन ऑल्सो। आपको डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना आता है? डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना आता है? नहीं आता है? कोई बात नहीं आता है तो एक बार मैं सिखा दूंगा। 5 मिनट का काम है, नो प्रॉब्लम। 5 मिनट का काम है। फिलहाल इसको मैं सिर्फ डिग्री में लिख रहा हूँ। इट इज वेरी सिंपल। इट विल टेक 5 मिनट्स। अच्छा, व्हाट इज अल्फा? हाउ विल यू रीड दिस इन फुल लेंथ? Alpha is the angle made by this vector with x-axis and is equal to 60 degree. What is it? Alpha is the angle made by this vector and is 60 degree. What is beta? Same ना बेटा? Cos inverse of half, ये भी ना? Is it 60? What will be gamma? Cos inverse of 1 by root 2. Is it 45 degree? Yes or no? तो सोचो, इसमें मैंने 6 क्वेश्चंस पूछा। ये क्वेश्चन वो लोग एग्जाम में पूछते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप में, लेकिन इसी को स्प्लिट करके वो लोग एमसीक्यू बनाते हैं। मतलब ये एक एमसीक्यू हुआ। भले वेक्टर मैंने ये पूरा दिया, लेकिन मैं आपको एंगल सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ पूछूंगा। ये सिर्फ एक क्वेश्चन है, एक सिर्फ क्वेश्चन है। 1 2 1 2 1 2 6 एमसीक्यूज इन 1 एमसीक्यू, और ये उतना ज्यादा फेवरेट है। अब इसमें लोग करते क्या है मालूम है? आप लोग रट्टा मार के, हाँ 60 60 45, वो लोग क्या करेंगे? ये देंगे i प्लस रूट 2j प्लस k, फिर ये करेंगे रूट 2 i एंड i, ऐसा रूट 2 i प्लस 1j प्लस k। रट्टा मार के नहीं जाने का। दोनों क्या कर रहे हो लोग? ये वेक्टर था ना, आप रट्टा मार के गए, ये कर दिया उन्होंने। अब रट्टा मार के गए, ये कर दिया। तो पहले कॉम्बिनेशन आया था 60 60 45, बाद में कॉम्बिनेशन आया 45 60 45, बाद में कॉम्बिनेशन आया 45 60 60, सॉरी 60 60 45, 60 45 60, 45 60 60। रट्टा मारा, उनको खाली एक एलिमेंट इधर से इधर करना है, बस खत्म, क्वेश्चन चेंज। और ऑप्शन भी खतरनाक देते हो लोग। हम लोगों ने लास्ट टाइम प्रैक्टिस पेपर में क्वेश्चन देखा था कि there are two vectors of sizes 5 and 12 respectively,
तो when will their answers be 17, 7, 13 और अपना आंसर आया था 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री। अब सोचो एक एलिमेंट मैंने इधर उधर कर दिया तो मेरा आंसर 0, 90, 180 आ सकता है, 180, 90, 0 आ सकता है, 180, 0, 90 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। यस और प्लीज 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 लेट मी नो। मेरा पूरा बोर्ड वर्क समझा? माय फुल बोर्ड वर्क, trust me students, must be at least 15 MCQs. My full board work means full 15 MCQs and it is very very beautifully given in your handwritten notes. Means you don't need to copy anything. Shall we start? Pause करोगे बेटा? Pause. Stop नहीं करना please. Pause. Are you on handwritten pages? Page number 8. Page number 8. लास्ट टाइम तक हम लोगों ने सिर्फ लेफ्ट टॉप किया था। अब एकदम आराम से जो मैं बोलता हूँ 1 by 1 पढ़ो, कीप लुकिंग एट द बोर्ड वर्क। ये आपकी जो हैंड रिटन पेजेस है ना बेटा, ये मेरे बोर्ड पिक्चर्स ही है। मींस यू डोंट नीड टू कॉपी एनीथिंग। व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग प्लीज बी वेरी फोकस्ड। घर पे जाके पहले हैंड रिटन नोट्स एकदम अच्छे से पढ़ने का, बिकॉज देन सॉल्विंग एमसीक्यूज विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। आर वी ऑन पेज नंबर 8 एवरीवन? लेफ्ट बॉटम आराम से, left bottom आराम से। What is the vector given to you? Vector OP, whose name is vector R. How will you write it? Rx times I या तो Rx times I plus Ry times J. 2D की 3D? 2D. Very good. दूसरा स्टाइल क्या है बेटा इसका? R cos theta times I and R sin theta times J. क्यों? क्योंकि थीटा हम लोगों ने x एक्सिस के साथ लिया हुआ है। तो प्लीज लेट मी नो, हैव यू अंडरस्टूड द फर्स्ट बॉक्स? Page number 8, left. Have you understood the first box after looking at the diagram? Yes or? फिर उसका मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढोगे बताओ? Magnitude of a vector is square root of sum of squares of components. So is it r cos theta the whole square plus r sin theta the whole square का square root? Should it be r itself? वो सारे स्टेप्स समझ में आए बेटा आपको? सेकेंड बॉक्स समझा? मतलब एक बॉक्स था आर कॉस थीटा टाइम्स आई, ये वाला, एंड आर साइन थीटा टाइम्स जे, ये वाला, और एक ये था ना, आपने उसका मैग्नीट्यूड ढूंढा, करेक्ट? सो दिस इज पेज 8 लेफ्ट साइड। अब बेटा पेज 8 राइट साइड टॉप पे आ जाओ। इज इट सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स? हियर यू आर। इज इट सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स? हियर यू आर। चेक करो। खाली लास्ट लाइन पढ़ोगे ना उसका तो भी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इफ इट इज वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, देन इज इट रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बट इफ इट इज वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, या तो वेक्टर b माइनस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, शुड इट बी रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। आप इनफैक्ट वो स्टार वाला पार्ट ध्यान से देखोगे ना तो मैंने वो हल्के से हाईलाइट भी किया हुआ है। एक्चुअली ये मेरे आईपैड में लिखे हुए नोट्स हैं, तो there I can use different highlighters, but when it comes in black and white printing तो आपको खाली वो shaded part दिखेगा। But please let me know, have you understood page 8 right side top? आराम से पढ़ो बेटा, कोई जल्दी नहीं, आराम से पढ़ो। इनफैक्ट मुझे कुछ करना ही नहीं है। ये जो मैंने MCQ बोर्ड पे किया है ना, वो सेम MCQ मैंने इधर छाप के दिया है। अच्छा, वो सेम MCQ आपको DCT में मिलेगा। अभी मैं DCT पे जाऊंगा, अपना सॉरी असाइनमेंट्स पे जाऊंगा मैं, तो उसमें भी ये सेम क्वेश्चंस है, राइट? तो मुझे कुछ नहीं करना, अपना ऑलरेडी बहुत सारा टाइम बच रहा है। जो एकदम प्राइम प्रॉब्लम्स है ना, जो एकदम इंपॉर्टेंट नीट में आते हैं या तो JEE में आते हैं, वो ऑलरेडी मैंने प्रिंट करके दिए हुए हैं। पेज 8 राइट टॉप, डन। यू आर नाउ ऑन पेज 8 राइट बॉटम।
पेज 8 completely understood, completely, है ना? टाइटल देखो बेटा, उसका टाइटल क्या था? डायरेक्शन कोसाइंस, शॉर्ट फॉर्म क्या है? DCS, DCS, ओके? नाउ प्लीज चेक पेज नंबर 9, लेफ्ट टॉप, क्या लिखा है मैंने? टाइटल भी क्या लिखा है? ये डिक्टो क्वेश्चन पूछते हो लोग, खाली वेरिएशन क्या होता है? I प्लस जे प्लस रूट टू के, उसकी जगह पे I प्लस रूट टू जे प्लस के, उसकी जगह पे रूट टू आई प्लस जे प्लस के। एकदम आराम से पढ़ो बेटा। मैंने पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया, आप लोग भी रेड पेन से उसको स्टार रेज टू 10 मार्क कर दो, ताकि जब आप एग्जाम के टाइम पे पढ़ाई करो, पता चला आपने एक प्रॉब्लम से सॉल्व किया और आपने शायद असाइनमेंट के प्रैक्टिस पेपर के 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस है? 6। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ओनली अल्फा, ओनली बीटा, ओनली गामा। समटाइम्स दे विल गिव यू अ वेक्टर, बट दे विल आस्क एंगल मेड बाय द वेक्टर ओनली विथ एक्स एक्सिस। तो क्या ढूंढने का? सिर्फ अल्फा, बीटा और गामा में टाइम वेस्ट नहीं करने का। आर यू गेटिंग दिस? ओके, प्लीज रिवाइज दैट। समझ में आ रहा है ड्यूरिंग द लेक्चर्स में टाइम कैसे सेव कर रहा हूँ? ये जितनी चीजें मैं लिख रहा हूँ ना बोर्ड पे, सपोज मेरा 10, 11, 12 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म होता है, तो सारे के सारे बोर्ड वर्क के पिक्चर्स मैंने प्रिंट करके दिए बुक में। एडवांटेज है स्टूडेंट्स, यू नीड नॉट कॉपी दिस। सोचो ना, ये बोर्ड वर्क कॉपी करोगे 15-20 मिनट जाएगा मिनिमम। एंड द वर्स्ट पार्ट इज बाय चांस कुछ गड़बड़ किया कॉपी करने में, एग्जाम टाइम पे यू विल स्टडी रॉन्ग थिंग and you will write the wrong thing in the exam. That's why you have to be alert. Page number 9, please let me know बेटा। लेफ्ट पार्ट वो प्रॉब्लम समझा आपको? नीचे जो दिया है वो ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुके हैं हम लोग। If vectors are suppose A and B, अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 60 है तो आंसर क्या आएगा? 90 है तो आंसर क्या आएगा? 120 है तो आंसर क्या है? अच्छा वो पार्ट छोड़ दो, वो पार्ट छोड़ दो। उधर जो मैंने लिखा है ना, ब्यूटीफुल शॉर्टकट फॉर पैरेललोग्राम लॉ, उसको आप पेंसिल से सर्कल करके रखो, वो पार्ट होल्ड पे रखते हो। वो लोग है ना वेरिएशंस देते हैं कि दो वेक्टर के बीच में सपोज एंगल 60 है तो क्या आंसर आया? 91। एंड इंपॉर्टेंट इज वो दोनों वेक्टर का साइज सेम है। सपोज देयर आर टू वेक्टर्स ऑफ साइज 4 each, राइट? उनके बीच का एंगल 60 है तो क्या आंसर आएगा? 90 है तो क्या आंसर आएगा? 120 है तो क्या आंसर आएगा? 180 है तो क्या आंसर आएगा? Now check page number 9 right side please. Do you see 2 titles? अब एक नीट वालों के लिए एक बेस्ट बात बोलूं बेटा, गुड न्यूज फॉर नीट स्टूडेंट्स, प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड। मतलब आपको सिर्फ टाइटल याद करना है, आपको सिर्फ टाइटल याद करना है। व्हाट इज द टाइटल? cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is 1 and sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is 2। उधर बेटा लिख लो प्रूफ में से, इधर बड़े बड़े हैंड राइटिंग में इधर लिख लो प्रूफ FYI, प्रूफ फॉर योर इंफॉर्मेशन ओनली। मतलब एग्जाम के टाइम पे बेटा प्रूफ पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करने का, खाली किस पे ध्यान देने का? टाइटल पे। आई रिपीट, व्हाट इज द टाइटल? cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is 1, sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is 2। Yes or no? Pause the video for the time being please। एग्जैक्ट MCQs बोलता हूँ कि डायरेक्शन कोसाइंस पे एग्जैक्ट MCQs कौन से हैं? आर वी ऑन? क्वेश्चन नंबर 20। Are we on question number 20? Two three. Are we on question numbers 20, 23? ये दो हो गया। प्रैक्टिस पेपर्स पे आ जाओ बेटा, प्रैक्टिस पेपर्स पे आ जाओ, प्रैक्टिस पेपर्स पे आ जाओ। Are you on practice paper 4?
4. Are you on fourth question? Are you on fourth question? पढ़ो क्या है वो? A vector A is 2i plus 4j minus 5k. Then what are the direction cosines? बराबर? सच्ची बोलूँ ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. आपका वेक्टर क्या है बेटा? 2, 4, माइनस 5. आपको चारों ऑप्शन में 2, 4 और माइनस 5 एक ही में दिख रहा है. हाँ आपको चारों ऑप्शन में बेटा 2, 4 और माइनस 5 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है. देखो मतलब रूट 45 कॉमनली आने वाला है. अच्छा मेंटली करके देखो रूट 45 आएगा कि नहीं. शुड इट बी रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर. 2 square is 4, 4 square is hey, did you switch on the video or no? So root of 2 square plus 4 square plus minus 5 square will be 4 plus 16, 20, 20 and 25, root 40. मतलब लॉजिकल क्वेश्चन था बेटा, समझा? ओके लेट मी चेक और किधर है कि नहीं. नो प्रॉब्लम, फाइन. अच्छा अभी लास्ट टाइम जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस क्लब कर रहा हूँ. ओके ऑन है ना? ओके होमवर्क विच वाज ऑलरेडी गिवन. Homework which was already given was assignment 2. Please confirm. Questions 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 and 11. Am I right? Now मैं जो नंबर्स बोलता हूँ आप लिखते जाओ. Because with today's knowledge you can easily solve these questions and come. With today's knowledge और ये सारा का सारा मैं जो फर्स्ट एग्जाम शुरू होगा ना उसमें इंक्लूड करने वाला हूँ. सो नेक्स्ट लेक्चर में पावर पैक डिस्कशन ऑफ दिस. 1 में ऑलरेडी दे चुका था क्वेश्चन 2 सॉल्व करने का. असाइनमेंट 2 हाँ पहले मैं असाइनमेंट 2 पे हूँ. असाइनमेंट्स हैव टू बी सॉल्व्ड इन द क्लास. प्रैक्टिस पेपर्स हैव टू बी सॉल्व्ड एट होम. And then when you come for the class, we can discuss the doubts of practice paper. Practice paper का बेटा हर एक पेपर का मैं full solution भी दूंगा आपको. 1 and 2 का दिया ना? Okay. Second question आप कर सकते हो. असाइनमेंट 2 डिस्कस नहीं किया था. Sorry? असाइनमेंट 2 मालूम. ये होमवर्क देने के बाद मैं शुरू करता हूँ. Yes. Second आप कर सकते हो. Third, fourth, fifth डिस्कस करने वाला हूँ मैं. Sixth one, let me check. Sixth one, let me check your sixth question please. हाँ? 6th में देख लेते हैं. 6 दिया था कि नहीं मैंने बताया? नहीं दिया. ओके तो 6 कर सकते हैं हम लोग. देख लेते हैं. 7, 8, 9 बोला था. लेट मी चेक. आप 10th क्वेश्चन कर सकते हो. 10th फिलहाल नहीं कर सकते हो. 11th मैंने बोला था. 12th कर सकते हैं. 12th कर सकते हैं. 13th कर सकते हैं. 14th कर सकते हैं. 15th लेट मी चेक. मेरे बीच में आ जाते 15 हाँ ठीक. 15 फिलहाल नहीं कर सकते. 16 कर सकते हैं. 17 नहीं कर सकते. 18 नहीं कर सकते. 19 कर सकते हैं. 20 कर सकते हैं. 21 कर सकते हैं. 22 कर सकते हैं. 23 कर सकते हैं. 24th अपना हो चुका है. चलेगा? 24th अपना हो चुका है. कौन सा प्रैक्टिस पेपर में था जरा बोलो तो मैं लिख लेता हूँ इधर. कोई तो एक प्रैक्टिस पेपर में था वो. रेड पेन लेना. 24th हम लोग ऑडिट कर चुके थे. If you can tell me the practice paper. Paper 1 Question बराबर ना. डिक्टो क्वेश्चन था बेटा. आंसर था 0, 180, 90 बराबर ना. ओके 25 कर सकते हैं. 25 कर सकते हैं. अब एक काम करने का बेटा मैं इसका डिस्कशन शुरू कर रहा हूँ. आज लेक्चर के एंड तक जितना हुआ उतना नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट टाइम ये सब करके आने का. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस कंप्लीटली असाइनमेंट 2 एंड प्रैक्टिस पेपर 3. प्रैक्टिस पेपर 3 में मैंने पहले 10 क्वेश्चंस दिए थे. ओके शैल वी स्टार्ट. तो नाउ आंसर और होमवर्क है. हाँ अभी जो मैंने नाउ लिखा ना ये होमवर्क है.
लेकिन मैं डिस्कशन शुरू कर रहा हूं अभी. जो मैंने नाउ लिखा वो होमवर्क है. द रिकॉर्डिंग इज ऑन. अब चलो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, असाइनमेंट 2, फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कशन स्टार्ट्स. Assignment 2, first question, discussion starts. There are two equal forces, underline the word equal, acting on a point at right angles, underline at right angles. And the resultant force is 14.14. Then what is magnitude of each force? ध्यान से सुनो बेटा. First question, assignment 2, first question. There are two forces F1 and F2. And they are equal in magnitude. तो मैं दोनों को सेम नाम दे रहा हूं, से F. ये समझा? एंगल बिटवीन देम इज 90, ये उन्होंने बोला है. एंड द रिजल्टेंट इज 14.14, ये भी उन्होंने बोला है. देन व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स? प्लीज लेट मी नो. क्वेश्चन समझा? आई रिपीट, देयर आर टू फोर्सेस, दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड, एंगल बिटवीन देम इज 90, रिजल्टेंट इज 14.14. देन व्हाट इज ईच फोर्स? वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी. कैन आई से Fr इज इक्वल टू अंडर रूट F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos of theta. So Fr square is F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos of theta. Square किया मैंने. So this gives me 14.14 का square is F square plus 2FF cos 90. Cos 90 is 0. So this gives me 14.14 का square is twice F square. Taking square root, 14.14 is root 2 times F. बराबर? And therefore F should be 14.14 upon root 2, which is 1.414. आंसर इज 10 न्यूटन ईच. मतलब दोनों फोर्सेस 10 न्यूटन होने चाहिए. मतलब दोनों फोर्सेस 10 न्यूटन होने चाहिए. अब इसका एकदम खतरनाक मेथड देखो और कितना क्यूट है वो देखो. दिस इज 10, दिस इज 10. कन्विंस? मुझे नहीं मालूम ये 10 10 है, मुझे नहीं मालूम. दिस इज F, दिस इज F. लेकिन मुझे ये मालूम है कि दिस इज 14.14. Now who is 14.14? Is it root 2 times the side? So root 2 times the side is 14.14 and therefore side should be 14.14 upon root 2. 14.14 upon 1.414. Oh lovely. समझा? मेरे पास दो फोर्सेस है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों राइट एंगल पे है. तो एवरी फोर्स मस्ट बी ऑफ व्हाट मैग्नीट्यूड. डायग्रामेटिक मेथड इज ऑलवेज फास्टर. लॉजिक समझा बेटा? ये आपका फर्स्ट प्रॉब्लम हुआ. आ गया था सबको? फर्स्ट प्रॉब्लम आया था सबको कि कॉपी करना है? कॉपी करना है? कर. जिनको नहीं आया था कॉपी करो बेटा. आंसर इज 10 न्यूटन ईच. आंसर इज 10 न्यूटन ईच. ये उसका दूसरा मेथड है. ये उसका दूसरा मेथड है. मैं लाइन से जाता हूँ 1 to 10 तक जितना जा सकते हैं, है ना? मैं लाइन से जाता हूँ. ये मैंने 2 आज दिया है, करके देता हूँ. क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2. देयर इज अ वेक्टर P I minus 2j minus 3k. There is a vector P I minus 2j minus 3k and there is a vector Q 4i minus 2j plus 6k. ध्यान से सुनो बेटा क्या बोला है. स्टॉप राइटिंग. What is the angle made by vector P plus Q with x axis? What is the angle made by vector P plus Q? तो पहले तो vector P plus Q ढूंढ लो. What is vector P plus vector Q? Can we call this as vector R? चलेगा? Right? What is it? 5i minus 4j plus 3k. Please let me know. ये समझा सबको?
Tell me who is this? Rx. Tell me who is this? Ry. Tell me who is this? Convinced? What is the meaning of cos alpha? Because उन्होंने क्या बोला है? Find out the angle made by the vector with x-axis. तो पहले मैं cos alpha ढूंढूंगा और फिर मैं alpha ढूंढूंगा. What is cos alpha? Rx upon r. So is it 5 upon? What is root? What is r? Root of 5 square plus minus 4 square plus 3 square. In fact मेरा suggestion ये रहता है ये टाइप के questions में कि पहले r ढूंढ लो, हमेशा पहले r ढूंढ लो. तो what is r? Root of 5 square plus minus 4 square plus 3 square. So is it root of 50? So is it 5 root 2? बेटा ये 5 root 2 समझा मैंने डायरेक्ट लिखा, समझा? So ये मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना अभी. This is 5 upon 5 root 2. 5 by. This gives me cos alpha is 1 by root 2. So what is alpha? Cos inverse of 1 by root 2. That means alpha is 45 degree with x-axis. So what is the angle made by the sum of these vectors with x-axis? 45 degree. समझा कि वापस बोलो? समझा? एक मिनट. पहले मैंने क्या किया? P plus Q ढूंढा. I am calling this as R, resultant. फिर मैंने क्या किया? वो resultant का magnitude ढूंढा. How? Magnitude of a vector is square root of sum of square of components. वो आया 5 root 2. And then I want angle only with x-axis. So I will focus only on cos alpha because I want only alpha. I don't want beta and gamma. चलो बेटा copy करो. Mark this question 5 star. Favorite of the examiners. Direction, cosine related questions are absolute favorite. So this would be easier to do with dot product. Yeah. Dot product किया नहीं इसके लिए. This would be very easy to do with dot product. लाइन से जाना पड़ता है ना बेटा. पहले एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन में डॉट, फिर क्रॉस. टीचिंग सीक्वेंस में जाना पड़ता है. एक बार पूरा चैप्टर हो गया, बाद में बेटा कोई भी मेथड से करना कौन पूछता है. Do it fast. That is important. Question number 2 done. 3 होमवर्क था, आया था कि सॉल्व करूं? 3 आ गया था बेटा. आपका आंसर आया -7i + 5j + 2k बराबर. ओके. 4th क्वेश्चन आया था कि हेल्प करूं? 4th क्वेश्चन आया था कि हेल्प करूं बेटा? कम ऑन डोंट हेजिटेट. 4th क्वेश्चन आया था. Did you use the formula root of f1 square plus f2 square plus 2 f1 f2 cos of theta? f1 की जगह पे आपने √2 डाला होगा और थीटा की जगह पे 45 डिग्री डाला होगा. आपका आंसर √17 आना चाहिए. आपका आंसर √17 आना चाहिए. Second, third का answer was C only, right? सी. मैं आंसर्स बोलता हूँ. फर्स्ट का आंसर सी आया, सेकंड का आंसर बॉम्बे आया, थर्ड का आंसर सी, फोर्थ का आंसर सी अगेन. फिफ्थ क्वेश्चन मैंने करवाया था कि नहीं करवाया था? दिया था. फिफ्थ क्वेश्चन को 10 स्टार मार्क करो क्योंकि इसमें गोल्डन रूल आ रहा है बेटा. ध्यान से सुनो, एकदम गोल्डन रूल आ रहा है और इसमें सिनॉप्सिस का भी एक पॉइंट कवर हो रहा है. उन्होंने क्या बोला है कि देयर आर 2 इक्वल फोर्सेस, अंडरलाइन इक्वल, acting at a point having resultant also equal to either of the forces. मतलब ये दोनों का वेक्टर का साइज तो इक्वल है ही, उनके रिजल्टेंट का साइज भी इक्वल है. उनके रिजल्टेंट का साइज भी इक्वल है. तो व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? ध्यान से सुनो बेटा. f1 is equal to f2 is equal to fr. ये तीनों के तीनों सेम है, राइट? तो मैं कॉमन नाम दे देता हूं, से f. Then theta, which is angle between f1 and f2, is how much? Stop writing please. ये सब आपको कॉपी करने की ही जरूरत नहीं है. उसका रीजन बोलता हूं मैं क्यों जरूरत नहीं है. Can I say fr square is f1 square plus f2 square plus 2 f1 f2 cos of theta? Fr is what? F square.
F1 is what? That is also F square. F2 is what? That is also F square. 2. F1 F2 means F and F both cos theta. इक्वेशन समझा? F1 F2 और FR तीनों का साइज सेम है. Now what is left hand side? Left hand side is F square. What is right hand side? ध्यान से देखो बेटा. 2F square plus 2F square cos theta. This is 2F square plus 2F square cos theta. So can I say left hand side is F square but right hand side में मैंने 2F square common लिया. 1 plus cos theta. Are you convinced? Are you convinced? So F square गया. That means 1 is equal to 2 times 1 plus cos theta. Therefore half is 1 plus cos theta. Therefore cos theta is minus half. 120. Very good. Cos theta plus half मतलब theta is 60. But cos theta minus half मतलब theta is 120. You know what is the best practical live example of this? आपका फैन. ये फैन है. इसमें तीनों ब्लेड्स के साइज बेटा एकदम सेम है, राइट? और तीनों के बीच में एंगल 120 है. सोचो कोई भी दो कंसेक्यूटिव ब्लेड्स के बीच में एंगल 120 है कि नहीं? तो एवरीबॉडी, ये F1 हुआ, ये F2 हुआ. हाँ, ये F1 हुआ, ये F2 हुआ, ये इनके बीच का एंगल हुआ 120. तो बेटा रिजल्टेंट का साइज क्या आया? सेम. दैट इज F. बराबर. अब ये F को ये F3 नलीफाई करता है, इसलिए यहां पे नेट फोर्स 0 होता है, इसलिए फैन बैलेंस रहता है एकदम. आप कभी भी कोई भी फैन देखना, उसके ब्लेड्स के साइज अलग अलग नहीं होंगे, राइट? इनके बदले 4 ब्लेड्स हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, लेकिन साइज अलग अलग नहीं होंगे. 3 ब्लेड से तो एंगल 120 होगा, 4 ब्लेड से तो एंगल 90 होगा, 5 ब्लेड से तो एंगल 72 होगा. 360/5 है ना? जितने वेक्टर्स है ना उतने से डिवाइड करने का. इज दैट क्लियर? अच्छा, दूसरा देखो बेटा, ध्यान से देखो. फैन के ब्लेड ऐसे फ्लैट नहीं है, एकदम ध्यान से देखो. ऐसा थोड़ा कर्व है, ऐसा थोड़ा कर्व है. ये स्टाइल के लिए नहीं है, ये कॉन्वेक्स पार्ट है और ये कॉन्केव पार्ट है. तो दोनों जगह पे प्रेशर डिफरेंस अलग अलग रहता है, और वो प्रेशर डिफरेंस अलग अलग है. दैट्स व्हाई इट विल थ्रो हॉट एयर अवे फ्रॉम यू. Mind you, this is also a brilliant thing in physics. Fan does not cool down the air. Air is a bad conductor. Fan throws hot air away from you. That's why you feel cold. In fact, need to make must question. If when the fan is speeded up, the answer is no. In a closed room, when the fan is speeded up, what happens to the temperature of the room? Answer is not decreased. Answer is increased. Because the fan is working on electricity. So when I switch on the fan, the motor inside the fan is rotating. It is making the blades rotate. So electrical work is done. That is thrown in the form of heat. Windows are closed. Door is closed. Where will the heat go? In the room only. अगर बेटा ये 2 फैन आगे वाले में एकदम फास्ट कर देता हूँ, राइट? तो ये बच्चों को तो अच्छा लगेगा, लेकिन मैं एकदम कॉर्नर वाले बच्चों को पूछूंगा, मैं खुद इधर खड़ा हूं, वी विल फील हॉट. यू नो व्हाई? बिकॉज दिस ब्लेड्स दे थ्रो हॉट एयर अवे फ्रॉम यू. वेयर इज इट गोइंग? एट द कॉर्नर्स ऑफ द रूम, एंड आई एम एट द कॉर्नर, सो आई विल फील हॉट. बिकॉज if you touch the central portion of the fan, will it be hot? Because electrical work is converted into heat. Where will this heat go? You have kept the door closed, you have kept the windows closed, so that hot air remains inside only. Logic समझा बेटा? Sure? इससे भी खतरनाक question. When the door of the refrigerator is kept open for a long time in a closed room, what happens to the temperature of the room? Answer is not decrease, the answer is increase. जो फ्रिज का डोर खड़ा ओपन रख के सामने खड़ा है ना, उसको मजा आ रहा है, ठंडा ठंडा कूल कूल. बट द कंप्रेसर ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज डूइंग वर्क. अब इसका खतरनाक आंसर सुनो. बिकॉज द डोर इज ओपन, द हॉट एयर फ्रॉम द रूम एंटर्स द रेफ्रिजरेटर. दैट मीन्स द मशीन ऑफ द रेफ्रिजरेटर विल हैव टू डू मोर वर्क एंड देयरफॉर मोर हीट. आप बेटा जब भी एसी ऑन करते हो, दरवाजा बंद क्यों करते हो, विंडो बंद क्यों करते हो? So that outside air does not come in. नहीं तो एसी चालू रखने का फायदा क्या है? अभी बाहर का एयर अंदर आ गया. सोचो मेरे 2 टन के एसी को
इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एयर के लिए वर्क करना पड़ेगा. मीन्स माई कॉम्प्रेसर्स फेल. कॉम्प्रेसर्स फेल. जब आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी का एसी ऑन करते हो तो शीशे बंद करते हो ना. दिस इज द रीजन. लॉजिक समझा. अभी क्वेश्चन क्यों कॉपी नहीं करना है. आप क्वेश्चन अब अच्छा ये गोल्डन रूल है, ध्यान से सुनो. क्या गोल्डन रूल है, ध्यान से सुनो. इफ टू वेक्टर्स आर ऑफ सेम साइज and if the resultant also is of same size, angle between them must be 120. If two vectors are of same size and resultant also is of same size, angle between them should be 120. Ulta statement. If two vectors are of same size and if angle between them is 120, the resultant must be of same size. If two vectors are of same size, angle between them is 120, resultant must be of same size. अब वापिस हैंड रिटन पेजेस पे जाओ प्लीज. आई थिंक इट वॉज पेज 9. एकदम नीचे जो पार्ट बाकी रह गया था ना अपना, मैंने बोला था फिलहाल मत पढ़ो. पेज नंबर 9 राइट साइड पढ़ो बेटा. If two vectors are of same size, say x, and if theta is the angle between them, then अभी इसमें मैंने जो प्रूफ किया ना बोर्ड पे, that is case 3. आपको लेफ्ट साइड पे 4 केसेस दिख रहे हैं बेटा. 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 180 डिग्री. मैंने इसमें से केस 3 प्रूव किया. हाँ, तो पेज 9 पे बॉटम पे गोल्डन रूल लिखो. पेज नंबर 9 पे बॉटम पे एक गोल्डन रूल लिखो. टेक डाउन प्लीज. इफ टू वेक्टर्स आर ऑफ सेम साइज, if two vectors are of same size and if angle between them is 120 and if angle between them is 120 degree, then the resultant also is of same size. The resultant also is of same size. And the converse is true. And the converse is true. Converse is true का मतलब क्या होता है बेटा. मैंने अगर उल्टा बोला सपोज कि two vectors are of same size and if the third vector also is of same size, then the angle between two vectors must be 120. समझा. सुपर श्योर, पक्का. So we stop here for the day. आपने मुझे याद कराना है कि सर हम लोगों ने क्वेश्चन 5 पे स्टॉप किया था. अभी आपका नया होमवर्क सुनो. ये जो मैंने लिखा है वो, अच्छा प्रैक्टिस पेपर 3 में मैंने 1 to 10 दिया था. प्रैक्टिस पेपर 3 में मैंने 1 to 10 दिया था. लेट मी फाइंड आउट व्हाट ऑल क्वेश्चंस यू कैन डू नाउ. और ये सब करके आना है बिकॉज आने वाले संडे एग्जाम में मैं सब पूछने वाला हूँ. प्रैक्टिस पेपर 3 में 1 to 10 किया. यू कैन डू 11th, 12th, 13th, 14th, 16th, 17, 18, 19 and 20. मतलब एक क्वेश्चन को छोड़ के सब कर सकते हो. 15 को छोड़ के सब. अब प्रैक्टिस पेपर 3 में बेटा 1 to 20 एक्सेप्ट 15. खाली 15th नहीं करना है. अच्छा शायद 19th का आंसर रॉन्ग है. जरा एक बार चेक करो 19th का आंसर क्या प्रिंट हुआ है. अब अपॉन है ना, अपॉन का साइन, अपॉन 3i plus j plus 5k अपॉन रूट 30 अपॉन है ना. हाँ बस तो बराबर. ना प्रैक्टिस पेपर 4. हाँ नहीं बराबर है. मैं खाली चेक कर रहा था. लास्ट ईयर की बुक में मिस्टेक था इसके लिए मैं चेक कर रहा हूँ. प्रैक्टिस पेपर 4 लेट मी चेक आउट व्हाट आर क्वेश्चंस यू कैन डू. 1 2 3 4 6 7 8 9 10. 1 to 20 except 5 9 11 13
16 का जरा डेटा दिखाओ मुझे. हाँ ठीक है. 1 to 16 बिकॉज उसके जो लास्ट 4 क्वेश्चन है वो डॉट प्रोडक्ट के. 1 to 16 करना है एक्सेप्ट 5, 9, 11 and 13. राइट? ये बेटा पूरा का पूरा करके आना प्लीज, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में ये सबका डिस्कशन कंप्लीट कर रहा हूँ. सर DCT नेक्स्ट लेक्चर में डीसीटी नहीं, उसका रीजन बोलता हूँ मैं. ट्यूसडे वी विल कीप डिस्कशन, थर्सडे आई विल कीप डीसीटी. So it will be closer to Sunday. So it will help you also. Okay? और थर्सडे का डीसीटी शायद मैं थोड़ा लॉन्ग डीसीटी रखूंगा. So that you get enough practice. Please switch on.